कोई बहुत अच्छा बोल के और अच्छा सा प्रेजेंट करके मीटिंग्स में उसकी ग्रोथ हो जा रही है, देन पीपल स्टार्ट एक्वायरिंग दैट स्किल, बट आई थिंक इट कम्स अ बिट लेट. तो मेरे हिसाब से यू गाइस आर डूइंग दैट ट्रेनिंग, राइट? If you can convert a good data scientist into a good storyteller, सब लोग यही कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं. Yeah, that'll be an amazing combination. Hi guys, welcome to another episode of our podcast, Talent First. Right now I'm in New York, Manhattan, where I'm talking to some of the top analytics AI leaders that have made their name in this whole industry in the US and New York and many such areas. One thing common about all of these people is that they come from India. They are just like you. They also started in this country very fresh, had a lot of aspirations, and today are doing big things. The goal of this conversation is to understand how they did it, why they did it, and what are some things that we can learn from them in both good ways as well as things that if they made a mistake, we should not repeat it. So hi Ashish, hi, how are you? I'm doing well, Raghav. Thanks for inviting me. Thank you. क्या चल रहा है? How's life? All good, yeah. Things are busy. I just changed my job. Moved to Capital One. That's a big change. Then we have a newborn at home a month back. तो आपने जब आप जॉब चेंज करते हो तो यूजुअली हर कंपनी का एचआर शुरू में दे डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स टू सॉर्ट ऑफ लूप यू इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. नॉर्मली दे डू. आई एम नॉट श्योर यहाँ पे. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी कि कैपिटल वन व्हेन यू जॉइंड कुछ आपको हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ how did you get into the culture of Capital One? It's a very formal process. So typically, there is an onboarding process which HR would take you through. तो वो 90 day का कुछ cycle होती है. So you have to follow that. उसके बाद there are a few things which as an individual when you're changing a job that you have to take care of. For example, एक 90 day का road map बनाना होता है, टीम से familiar होना पड़ता है. आइडिया कल्चर का ऑलरेडी होता है जाने से पहले और वो इंटरव्यू प्रोसेस में भी थोड़ा हाईलाइट हो जाता है. सो वंस यू कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड देन यू मेक अ प्लान कि मैं 90 डेज में ये करने वाला हूँ, 90 डेज के बियॉन्ड ये करने वाला हूँ. दैट्स हाउ यू प्रोसीड टिपिकली, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. एचआर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द बिगिनिंग. Perfect. So now let's try to take a couple of steps back. Let's try to go back to you were born in Delhi. Born and brought up in Delhi. Yeah. कहाँ पे पढ़े थे आप दिल्ली में? Saint Xavier School. Oh, civil lines. No, the Rohini one. The Rohini one, interesting. Yeah. ये काफी बार लाइफ में हुआ होगा आपसे कि आपने लोग पूछते हैं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, बोला सेंट जेवियर्स. कंफ्यूज होता हूँ, है ना? काफी बार हुआ हुआ है. Fair enough. We used to have some events there. So I've been there. Yeah. But the same organization. It's the same organization. Yeah. God, so there are a number of institutions across India, and a pretty strong, solid organization. Yeah. So when you were 18, लाइफ में एस्पिरेशन क्या थी? यार 18, लेट मी टेक अ स्टेप बैक. क्या कर रहा था मैं 18 में? आई थिंक कॉलेज आपके कॉमर्स ली थी, साइंस ली थी क्या? 18 नहीं, साइंस ऑल थ्रू. आई वाज वेरी गुड मैथ स्टूडेंट. कॉमर्स तो ऑप्शन ही नहीं होती ना उस टाइम पे. एटलीस्ट द एरा आई ग्रू अप इन. कि पढ़ाकू बच्चे मिले थे उस टाइम पे. ऐसे होता था कि साइंस इज द ओनली ऑप्शन इफ यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज. कॉमर्स तब लेते हो जब तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, और आर्ट्स तब लेते हो जब तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल नहीं आते. व्हिच आई डोंट एग्री विद दैट. आई थिंक अब तो वर्ल्ड चेंज हो गया. अब तो बहुत चेंज हो गया. हाँ, तो लिबरल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज इज व्हाट मोस्ट बैंकिंग पीपल आर स्टार्टिंग. हाँ, तो अब सिनेरियो अभी चेंज हो गया. बट उस टाइम पे आई वाज गुड इन स्टडीज. मैथ साइंस अच्छा था स्टार्टिंग से. तो बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं था मैं. I was like in top 5 most times, but I was not the geek वाला वो एंगल नहीं था उस टाइम पे. तो हाँ, यही कर रहा था. I think उस टाइम पे I got good marks in 12th standard, and then I think I was preparing for IIT at that point. तो वो 2 साल जो 11th 12th के IIT की प्रिपरेशन होती है. कैसे फिटजी गए थे, कहीं गए थे यार? सेंटर गए हो? So I got through Vidya Mandir. Oh. And actually, so there's a story around that. So, but if all of us come from a middle class family, right? And not all of us, most of us. Yeah. So I was from a middle class family. क्या करते high थे? education. Parents क्या करते थे? Government service. My father and Delhi Transport government service. Mom housemaker. जी. तो हाँ, कहाँ थे हम? कि आप बेसिकली 12th के पहले विद्या मंदिर में आपका एडमिशन हो गया. एडमिशन हो गया था, बट
पाई एजुकेशन होता था उस टाइम पे, आई डोंट नो अब एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसमें मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो घर में उम्मीद सी आ गई ये कुछ तो मार्क्स अच्छे आ गए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे। फ्री में पढ़ा देंगे। हाँ, तो तुम्हें कुछ फीस नहीं देनी है। राइट। सो आई जॉइन पाई एजुकेशन। राइट। तो पाई एजुकेशन में फिर 2 साल की तैयारी थी। स्कूल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था उस टाइम पे। आई नो आजकल तैयारी कैसे करते हैं लोग IIT की, बट उनका एक IIT का एक अलग करिकुलम होता है, उसमें तैयारी करते हो 2 साल। तो वो दिन रात वही चल रहा था दिमाग में कि IIT करना है, IIT करना है, और अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, मॉक टेस्ट वगैरह सब अच्छा था। सो D-Day आया IIT के। एक्चुअली उससे पहले जब एग्जाम दे के आते हो तो एक इवैल्यूएशन होता है अपने सेंटर में, जहाँ पे तुम बताते हैं कि कैसे कैसे कितने मार्क्स आ सकते हैं, बताना पड़ता है। ये क्या मतलब है? मतलब लेट्स से आपने एग्जाम दिया है, उसके बाद आप जाके बताओगे कि मैंने ये मार्क किए हैं इनके आंसर्स, देन योर सेंटर हेड और जो भी ट्यूशन वाले करते हैं, पाई एजुकेशन वाले जो समझ करते हैं, सो दे विल टेल यू कि तुम्हारा ये तो स्कोर है। आपकी क्या उम्मीद थी लोग? सो मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मतलब इट वाज अमेजिंग कि टॉप 500 में कुछ रैंक बैंक आ जाएगी। तो मैं तो चिल होके बैठ गया था कि मेरा तो लाइफ सॉर्टेड है, आप खेल लिया हमने। क्या IIT में हो गया, वही कर रहा था। फिर हुआ क्या? उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में रिजल्ट डिड नॉट क्वालिफाई एंड आई वाज लाइक वाओ, ये शॉक। ये मेंस की बात है, एडवांस मेंस। हाँ, उस टाइम पे 2 होते थे एक्चुअली, मेंस और एडवांस। मेंस। हाँ, तो पहला तो हो गया था, तो ये मेंस की बात है। तो मेंस में हाँ आई वाज इन कंप्लीट शॉक, मतलब दैट वाज रियलिटी। मैं थोड़ा सा ही, इतना हैसल में कभी होता नहीं हूँ लाइफ में, बट आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई पहला फेलियर था लाइफ। हाँ, पहला काफी मेजर था, मतलब 2 साल एकदम जीरो हो गए। तो थोड़ा मेंटल हेल्थ के टाइम पे आई एम जस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल जो सॉर्ट ऑफ कैन डू लाइक अ सॉर्ट ऑफ वैक्यूम साइकिल ऑफ नेगेटिव मेंटल हेल्थ। आपको अभी नहीं हुआ उस टाइम? यू आर नॉट एट दैट पॉइंट। क्या व्हाट वाज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मतलब एज आई सेड कि एम चेंज होते रहते हैं, उस टाइम पे ये एम था। उसके बाद फिर ये था कि नेक्स्ट स्टेप वाज NSIT DC। या तो NSIT में हो गया था। उसके बाद फिर ये था कि बस अब इसी को करना है आगे। और एक बार तुम इंजीनियरिंग में घुस जाते हो तो फिर ऐसा नहीं होता है कि अब 4 साल में पढ़ाई करूंगा। जी। मोस्टली लोगों का ये होता है कि अब तो हो गया, अब तो हो गया। हाँ, जॉब तो अब लगी जानी है, जॉब की तैयारी करते हैं लोग। उस टाइम पे ऐसा भी क्लैरिटी किसी के दिमाग में नहीं होती थी। वेरी फ्यू पीपल जिनको ये लगता था कि हम कुछ और करना चाहेंगे जॉब के, या मेरा कोई इंटरेस्ट है पर्टिकुलर जिसको मैं फॉलो करना चाहूंगा। एटलीस्ट द पीपल आई नो, मे बी होता होगा कुछ लोगों का, but lately I think that has changed a lot, right? I think you are probably one very good example, right? You wanted to do something right, which is not like a very conventional path, right? And you're right. following that. But उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। So उस टाइम पे होता था कि 4th ईयर के बाद जॉब लग जानी है, 3 साल हमने ऐश करनी है, 4th ईयर में हम पढ़ाई कर लेंगे और हो जाएंगे। सारे इंजीनियर ऐसे ही सोचते हैं। पर उस टाइम पे ज्यादातर ये IT सर्विस कंपनीज में जॉब का ही ढूंढते थे ना मोस्टली। उस टाइम पे भी आती थी, आई थिंक कंसल्टिंग कंपनीज आती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में कम आती थी। बट कंसल्टिंग का भी जो बैक एंड होता है ना, कैपेबिलिटी सेंटर, जैसे BCC का एक बैंक का कैपेबिलिटी सेंटर है, उस टाइप की कंपनी आती है, डेटा एनालिटिक्स। तो आप कैंपस प्लेसमेंट के अंदर हाउ आर यू, लाइक क्या ऑप्शंस थे आपके पास? सो आई गॉट अ कपल ऑफ जॉब्स, मतलब बाय दैट टाइम आई हैड सम क्लैरिटी इन लाइफ कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। हाँ, मतलब ये हो गया था कि जॉब तो मिल ही जानी है, ये आ गया था कॉन्फिडेंस। ओवरऑल तो पता नहीं बढ़ा या नहीं, but ये बढ़ गया था। राइट। सो 2 जॉब लगी थी मेरी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है, तो 2 कोर जॉब लग गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उनका आई थिंक 5-6 लाख रुपए होता था शायद पैकेज उस टाइम पे। था इतना 5-6 लाख रुपए? 2010-9 की बात है, 10। हाँ, इतना होता था। तो उसमें 3 टियर, दिस वाज 2009, तो उसमें 3 टियर्स होते थे मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद है कि टियर A में लग गई है तो B में नहीं बैठ सकते हो, B में लग गई तो C में नहीं बैठ सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है। 2009 में तो सत्यम का क्रैश भी हुआ था ना? हाँ, I don't know if you remember. I don't remember. Yeah, हाँ, got it. तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो उस टाइम पे ये होता था कि कोर कुछ कोर कंपनीज मानी जाती हैं, राइट, और कुछ IT कंपनीज मानी जाती हैं, एंड देन देयर आर सम रिलेटेड टू एनालिटिक्स व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो कोर में जाना चाहते हैं मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स। या तो कोर में 2 जॉब लग गई थी, एंड बट माय पॉइंट वाज कि दिस विल नॉट बी इनफ, और मुझे थोड़ा सा बिजनेस साइड में इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया था तब तक कि आई डू नॉट वांट टू डू कोर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू आउट माय लाइफ। इतनी क्लैरिटी उस टाइम पे आ गई थी। सो तो कैट की तैयारी चल रही थी हल्की फुल्की साथ में। तो कैट में अच्छे आ गई परसेंटाइल 99 टाइप्स, तो अच्छे कॉलेज में हो गया।
MDI में, तो मुझे लगा ठीक है, मतलब ऑब्वियस चॉइस है, लेट मी नॉट गो द कन्वेंशनल पाथ, MBA कर लेता हूँ। MBA भी वैसे कन्वेंशनली था, थिंक अबाउट इट। फिर MBA में गए। MBA इज डिफरेंट दो, MBA इज नॉट लाइक इंजीनियरिंग। MBA में सारे कंपेरेटिव होते हैं, फीस भी आई थिंक उस टाइम पे बढ़ गई थी MBA की काफी, इट वाज क्लोज टू 15-20 lakhs आई रिमेंबर। नहीं तो मुझे थोड़ा समझाओ आप कि एट अ फाइनेंशियल लेवल व्हेन यू वर टिल लाइक 20 to 23, आई एम श्योर आपके फादर मदर जो भी, उनका भी आपको दिख गया होगा कि लिमिट आ गई है कि उनसे एक लेवल से ज्यादा पैसे ना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा मुझे उस तक कंट्रीब्यूट ही करना पड़े। आई एम अज्यूमिंग हो सकता है उन्होंने कभी आपको बोला ना हो, बट एक खुद सबकॉन्शियसली फीलिंग शुरू हो जाती है कि देयर इज समथिंग दैट आई कैन नॉट आस्क देम। हाँ, नहीं, यू आर राइट। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट क्रेडिट आई हैव टू गिव टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया। नहीं, मुझे पता था, इट वाज वेरी एविडेंट। ऐसा नहीं था कि हम कोई बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट फैमिली से आते हैं, तो दैट वाज प्रीटी क्लियर टू मी थ्रू अ टाइट सिचुएशन। हाँ, बट नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस, राइट, कि दैट वे आई एम लिटिल प्रैक्टिकल इन लाइफ। मुझे पता है कि अगर मैं अभी 5 लाख रुपए की 6 लाख की जॉब ले सकता हूँ, तो MBA के बाद मिल जाएगी 10-11 की, तो मिल ही जाएगी, राइट। आई एम नॉट दैट बैड स्टूडेंट। तो क्लियरली अगर हम 15 लाख रुपए अभी खर्च भी कर देते हैं, 2 साल का थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है, तो ROI निकल जाएगा। मतलब इतना मेरे ख्याल से मैथ्स कर लेते हैं लोग। या तो ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब सस्टेनेबल था, आपने लोन ले लिया कहीं से तो मैनेज हो जाएगा। So now that you do your MBA, that is the time when you sort of decide the course of your professional journey. Yeah. You can get into multiple aspects, right? It's not just technical. आपने तो एकदम कोर टेक में घुस गया, बट मुझे आप उस टाइम पे थोड़ा बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास या आपके दोस्तों के पास पोस्ट MBA? यार, पोस्ट MBA मल्टीपल ऑप्शन थे। उस टाइम पे ये होता था कि फाइनेंस में अगर जॉब मिल जाए, या एक्चुअली कंसल्टिंग से स्टार्ट होता है कि कंसल्टिंग टॉप टियर जॉब है। उसके बाद ये BCG बेन टाइप्स, हाँ, कि मैकेंजी में या बेन में, यहाँ पे अगर जॉब लग जाए तो सॉलिड पसंद है लोगों को। हाँ, उसके बाद फाइनेंस की गोल्डमैन में लग जाए, राइट। उसके बाद आता है मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब्स, एंड देन देयर आर डेटा एनालिटिक्स जॉब्स आल्सो। अब वो when it comes to data analytics, I think it depends on the brand you're working for. So Amex was a huge brand at that point. And it also depends how much they're paying. Amex की इंटरेस्टिंग बात ये मुझे पता लगा, इंडिया में आई थिंक 2 कंपनियां थी जिन्होंने एनालिटिक्स स्टार्ट किया था, उसमें Amex और Genpact, जी। आई थिंक GE ने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से 99 में इन्होंने शुरू किया था गुरुग्राम में। हाँ, तो Amex इज मैं बहुत लीडर से बात करता हूँ, Amex के लिए इतनी रिस्पेक्ट है इन द इंडियन एनालिटिक्स कम्युनिटी, बिकॉज बहुत कुछ यहीं स्टार्ट हुआ है। Yeah, it was a very smart decision by a very senior leader in Amex. You must have heard the name Ash Gupta. Yeah. So he started that basically. So it was his idea कि India में you have the right talent for this kind of a job. So let me open a center in India. It will be cost effective. Yeah. Plus you will get the right output. So why don't we try that? And then it actually worked. It's working even now. नहीं तो Amex के अंदर जब आपका हुआ, Amex तो शुरू से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक sort of mystique, fancy around that brand, right? That logo, the way its branding is like phenomenal of Amex. So जब आपका Amex में हुआ, थोड़ा बताओ दोस्तों यारों का, relatives के साथ, how was the conversation like? कितना खुश फील कर रहे थे आप, वो क्या बोल रहे थे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो दो एस्पेक्ट हैं उसके। एक तो वो ROI वाला था, राइट, कि घर वाले खुश थे, जो डिसीजन था 5-6 लाख की जॉब करके आप भी ये करना है नहीं करना है, राइट, तो वो सक्सेस हो गया था एक तो वो बड़े खुश थे घर वाले फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एंड ऑब्वियसली बच्चे की जॉब लग गई है तो वैसे इंडिपेंडेंट हो गया। गुड़गांव में थी ये? हाँ, गुड़गांव में थी। कहाँ पे थी गुड़गांव में? गुड़गांव में यार सेक्टर 44 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अब तो आई थिंक वन होराइजन सेंटर है एक, और एक Amex का कैंपस है, अभी भी है शायद वो, आई थिंक दोनों चीजें हैं। तो एक पेरेंट्स का तो ये रिएक्शन था कि दे वर सुपर रिलीव्ड, आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों का था यार, प्लेसमेंट सीजन में अलग ही रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे कल्चर ये होता था कि अब अगर day 1 पे जॉब लग जाती है तो इंटरव्यू से जब बाहर निकलते हो एंड व्हेन इट गेट्स अनाउंस्ड, तो आपके सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं कि सारे आ जाते हैं, आपकी शर्ट वर्ट निकल जाती है। सो एवरीवन वाज प्रीटी हैप्पी, आई वाज वेरी रिलीव्ड कि यार हो गया, अब मुझे आगे प्लेसमेंट में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना। सो व्हेन यू गॉट टू Amex, थोड़ा बताइए कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग Amex विल बी
and how was it different than what you expected? Yeah, I'll be honest with you. Even at that point, I don't think I was that mature कि You had any expectations? कि मुझे कंपनी कल्चर कैसा लगेगा और सोचेंगे लगेगा, राइट? अब मुझे पता है कि यहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, राइट? 13-14 लाख रुपए जितने की भी जॉब थी वो कि आई वाज प्रीटी हैप्पी विद द मनी. मनी इज फ्लोइंग इन, तो चिल है, मजा आ गया. और कल्चर तो हम लोग जहाँ से आते हैं, मतलब जिस टाइप की इंजीनियरिंग का कल्चर होता है, हार्ड कोर होता है, कंपेटिटिव सोसाइटी है इंडिया, राइट? तो वहाँ से आप एक MNC कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो, वो सब अच्छा ही लगता है, सारे लोग अच्छे ही हैं. वो बाद में स्टार्ट होता है कि आप किसी ने मुझे ऐसा बोला, इस तरीके से बोला, राइट? तो एंड आई थिंक MNCs में स्पेशली इन इंडिया, आई थिंक पीपल आर वेरी केयरफुल एंड दे हैव गुड कल्चर्स मोस्टली. तो एमएक्स में हमने इंडिया में 3 साल काम किया. या 2011 to 14, yes. तो अब आपका ये जर्नी, यू नो, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं आपसे पहले बात भी कर रहा था, एंड हमारे फ्यूचर इन यूएस पाथवे में लोग ऑन साइट जॉब्स का इज समथिंग दैट वी आर हेल्पिंग देम गेट. तो यही बात है कि आपको ये L1 की जर्नी कैसे हुई आपकी? बिकॉज ना कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज, अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, L1 मिलता ही नहीं किसी को. बट आपके टाइम में भी मतलब कैसे मिला आपको, और आपको क्या लगता है कि what did you do differently that your company supported you? Yeah, so I think that structure in my mind was kind of always there. थोड़ा शॉर्ट टर्म होता था स्ट्रक्चर हमेशा. ऐसा नहीं होता था कि 10 साल में ही करना है ये, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी होती थी कि 2 साल में ही करना है. जैसे इंजीनियरिंग के बाद भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई थी, MBA करनी है. तो MBA के बाद तो पता ही था कि जॉब तो मिल ही जानी है, बट देखते हैं. मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पर्टिकुलर नहीं था उस टाइम पे भी. सो व्हेन आई जॉइंड एमएक्स, 1 साल तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह में सब सीखने में स्पेंड किया. उसके बाद देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि 2 साल में वेयर डू आई सी माई सेल्फ. तो इट वाज प्रीटी एविडेंट अक्रॉस द कंपनी कि आप बाहर रोल ले सकते हो. मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो, रेटेड वेल, एंड पीपल आर सपोर्टिव ऑफ यू मूविंग आउट, देन यू कैन मूव. हाँ, एंड वो L1 का जो प्रोसीजर है एमएक्स का बहुत अच्छा है. मतलब दैट कॉस्ट सेंटर व्हिच दे हैव ओपनड, वो यहाँ पे लोगों को हायर करते हैं व्हिच इज ऑलरेडी ट्रेन्ड. 3 साल की ट्रेनिंग लेके कोई आया हुआ है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. और यहाँ पे भी बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल हैं एक्चुअली एमएक्स में, जो इंडिया से आए हुए हैं, राइट? सो दैट पार्ट वाज वेरी क्लियर टू मी कि ये एक पाथ होता है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. इनफैक्ट आई रिमेंबर कि मैंने सेकंड ईयर में बोल दिया था अपने मैनेजर को दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू परस्यू, एंड शी टोल्ड मी हां, लेट्स डू इट. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. एंड सो आई वाज डूइंग वेल, रेटेड वेल. Applied for a couple of roles here in the US. There were 2 openings here. Actually, that was maybe a career-defining moment at that point, because there was an opening in credit risk, which is more of a strategy role. Another opening was in data science. People actually told me to join the credit risk team because data science is pretty hardcore. But then I got exposed to data science in Gurgaon in one of the projects. यार मुझे एक चीज बताओ, राइट? अभी भी मैं इंडिया में लोगों से बात करता हूँ, they write data scientist in their resume, but it's all bullshit. Most of it, like I'm being very honest with you. Okay. 2013-14 में डेटा साइंस क्या थी और आज क्या हो गई है, how would you, डिफरेंस तो बहुत आ गया है. तो क्योंकि डेटा साइंस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, it's not that complicated. Again, you can like you can go into niches of it and complicate it, but it's at a top level not that complicated. Can you explain data science to us? Difference between 2013-14 when you were at a pivotal time of, you know, that was the defining time बन रही थी data science, और अब क्या हो गया with AI? Yeah, I think let's start with data science, right? What is data science? इसके भी different aspects होते हैं. Actually, data science होता है, decision science होता है, then there is AI. Decision science तो म्यूजिक मैंने दिया ना. I'm not sure about किसने नाम. या तो उन्होंने ऐसी क्लेम कर लिया उन्होंने, मुझे. So basically एक होता है कि आप डिसीजन साइंस, बेसिकली जो टिपिकली डिसीजन साइंस होता है इन कंपनीज. डेटा साइंस थोड़ा टेक कंपनी में ज़्यादा होता है, बट डिसीजन साइंस का मतलब ये है कि आपको इंटेंट पता करना है, राइट? यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग. लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ जी. जैसे ट्रैफिक लाइट पे कोई कार का परफ्यूम बेच रहा है, राइट? वो सेलर है. अब वो तो रैंडमली जो गाड़ियाँ रुक रही है उन पे बेच रहा है, राइट? और जो खरीदेगा तो 100 में से मे बी 10 लोग खरीद लेते होंगे. इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेट कर दो, राइट? अब वो बोलेगा कि जो बड़ी गाड़ी आएगी ना, मैं उसको बेचता हूँ. समझ गया. तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया. उसके बाद तीसरा लगा देगा कि सर्विस सेंटर पे जाके बेचता हूँ, वहाँ ज़्यादा. अब वो मैनुअली लगा रहा है, राइट? ऐसे ही बड़ी गाड़ी,
garage, they can be like thousands or millions or zillions of combinations. तो वो डेटा साइंस उसको उन कॉम्बिनेशंस को ऑटोमेट कर देता है. तो डिसीजन साइंस और डेटा साइंस में फर्क क्या है? Decision science is more when you know that what the outcome is, right? So you work towards predicting that outcome. That is decision science. Data science can be without outcome also, right? So one, for example, completely unsupervised, and you're trying to get into data applying different techniques that can give you an opportunity. There is an opportunity in this segment, and then you decide this is what I want to do in this segment. Then it converts into decision science. So data science is again I'm still asking you 2013-14 में इंडस्ट्री अबाउट डेटा साइंस क्या थी और आज विद एआई कैसे बदली है? कुछ बदली भी तो होगी कुछ. हाँ डेफिनेटली यार. So I don't want to get into too many technical details, but at a high level, right? जो technicalities होती थी, जो techniques use करते थे, वो change हो गई है. Plus जो democratization of data science है, that has changed. तो पहले ऐसा होता था कि कुछ particular लोग होते थे जो जिनको आता है data science करना, right? और decision science करना, वो करते थे, अपना model चलाते थे. वो researcher type लोग होते थे. Not all of them, मतलब कुछ लोग थे जो कि रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से आए थे, तो वो मॉडल्स वगैरह चलाते थे, राइट. अब क्या हो गया है कि और वो जो टेक्निक्स होती थी कि लीनियर रिग्रेशन यूज कर लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगेन दैट्स अ टेक्निकल पार्ट, वो फिर वो इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, राइट. सो लीनियर लॉजिस्टिक से फिर जीबीएम आ गया, ग्रेडिंग बूस्टिंग, ट्री बेस्ड लर्निंग आ गया, राइट. अब लेटेस्ट जेन एआई आ गया, राइट. सो दैट हैज चेंज्ड डेफिनेटली. द टेक्निक इटसेल्फ हैज चेंज्ड, दैट्स वन. सेकंड, I was alluding to the democratization of it, right? कि कुछ लोग करते थे, कुछ कंपनीज करती थी, अब बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं. But I don't think even now the penetration is a lot. Once you start going into the details, right? कि database, prediction based decision making कितनी हो रही है और influence कितना कर रही है business, वो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी. और वो for that reason I think कि जब वो मे बी पेनिट्रेशन 30% तक पहुंच जाएगी तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. आई थिंक दिस फील्ड इज गोना एक्सप्लोड फर्दर. जी. आई थिंक आई डेफिनेटली एग्री विद यू. एंड वन थिंग आई हैव सॉर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मान लो जो डेटा साइंटिस्ट का काम था विद जेन एआई, विद कोपायलट्स एंड विद मेनी सच टूल्स कमिंग एट डिस्पोजल, क्या वो कम होगा? चेंज होगा. I like the answer. I'm thinking about the response. So change होगा definitely. कम. तो let's say बहुत business बढ़ते रहेंगे और job openings आती रहेंगी. Let's go with that math. Change कैसे होगा? क्योंकि जो चीजें आप जो let's get into one of the examples, right? आप मॉडल बनाते हो, आप डेटा प्रिपेयर करते हो, right? That's the first step. उसके बाद फिर कुछ उस पर टेक्निक लगाते हो, फिर एक मॉडल चलाते हो उसके ऊपर. अब वो वाला जो सारा पार्ट है ना वो ऑटोमेट हो जाएगा, राइट. सो वो चेंज हो गया. अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट, कि ये तो आपको आता ही है. इसके बियॉन्ड आप जो इसमें से इनसाइट ड्रॉ करोगे वो आप कैसे करोगे, राइट. अब उसमें जो स्मार्टनेस आप लेके आओगे या और उसके ऊपर टॉप पे कुछ करोगे, दैट विल नाउ बिकम इम्पोर्टेंट, राइट. सो जो डेटा साइंटिस्ट टू योर अर्लियर पॉइंट, राइट, कि कोई भी लिख देता है डेटा साइंस अपने रिज्यूमे पे, वो चेंज हो जाएगा. मतलब ये सबको करना आ जाएगा फिर अब, राइट. जो वो थोड़ा बहुत डेटा साइंस करते थे पहले लोग, वो अपने आप को डेटा साइंटिस्ट बोलते थे, ये अब सब कर लेंगे. तो अब जो स्मार्टर वंस होंगे वो आगे बढ़ेंगे, राइट. बट इट विल, सो दैट्स वन, दैट कैन साउंड लिमिटिंग कि नंबर उनका, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, टाइप ऑफ काम कम हो रहा है, तो जॉब्स भी कम हो जाएंगी. दैट विल नॉट बी द केस, बिकॉज आई थिंक यूज केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट. तो जैसे अब मार्केटिंग सेल्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जेन एआई का, फॉर एग्जांपल, राइट. सर्विसिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा. तो ना पहले कौन सा डेटा यूज होता था, पहले कोई डेटा साइंस यूज नहीं होती थी, राइट. इन सब मार्केटिंग सेल्स में तो अभी लेटली यूज हो गई है, स्टार्ट होना. सर्विसिंग में कहाँ होती थी. सो बिकॉज नाउ यू आर एक्सपैंडिंग द यूज केसेस, फॉर दैट रीजन जॉब्स विल इंक्रीज. तो ऐसा आई डोंट थिंक द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट विल गो डाउन. नाउ इफ यू लुक एट योर जर्नी, एमएक्स में 11 साल रहे, 11 साल आप एमएक्स में रहे हो, एक दिल से क्वेश्चन आता है, वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन. मेरी आपसे ही बात हुई, मैं आपसे भी समझ रहा हूँ, दिल्ली के बंदे हो, एनर्जेटिक बंदे हो, हमेशा चुल रहती है क्या है, व्हाटएवर, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई एम श्योर कुछ बीच में काफी सवाल रहे होंगे, ख्याल रहे होंगे कि यहाँ स्विच कर लेता हूँ, खुद का खोल लेता हूँ, इंडिया चला जाता हूँ.
थोड़ा बताइए क्या सवाल थे दिमाग में, ऑप्शंस क्या थे, you don't get into your head, and why did you not do those options? Can be personal also. मतलब I think I'm still at a phase where I'm evaluating the options. ऐसा नहीं है कि ये हो गया, मैंने जॉब चेंज कर लिया है तो अब ये डन है, राइट? तो and this I'm saying not in terms of finding more job opportunities. No, I know what you mean. कि मतलब करना क्या है, राइट? In your case, for example, right, responsibility थोड़ी सी कम है, just started. The good part about you, for example, is कि you realized it in the beginning itself. जी. कि leverage या value का है. बहुत सारे लोग ये decision उस time पे ले नहीं पाते, and then it keeps on increasing, right? Your opportunity cost keeps on increasing. But what people don't realize is कि जो happiness और money और resources का जो ये curve है, right? This is a logarithmic curve. कि ये eventually आपको इतनी happiness देगा ही नहीं, money accumulation. 100%. Right? ये लोग realize नहीं करते हैं, right? People think ये exponential curve है, कि ये बढ़ता जाएगा, so let me just keep trying, keep hogging money. तो वो नहीं है. तो ये you would have probably realized it and you took a decision कि let me try this out, right? Risk and return अगर चला तो बहुत अच्छा चलेगा. And so that's exponential. तो ये लोगों को बाद में realize होता है, right? So for me, I think that realization came maybe 7-8 years after started working. कि now next what, right? क्या बड़ा करना है? But by that time you get into a zone, right? You have a skill set which you have developed. अब वहाँ से comfort zone से आगे निकलना, plus the responsibilities by that age which you will have, right? You got married, I'm living in New York, I have 2 kids. That decision keeps on becoming harder. Yeah, time, obviously. Right? Obviously. But I think, right, as we were discussing, कि इतना भी hard नहीं है. I think it's a mental block. So if you really find a good idea, right, or if you really think that this is something which excites me, then you should go for it, and money should not be a blocker in that case. That opportunity cost which I was talking about, which people think increases linearly, वो इतनी ज़्यादा नहीं है. But don't you think it's comparatively way easier to start in India because the cost of living is very cheaper comparatively? यहाँ पे तो क्या है कि for anyone to sustain themselves it's so expensive that you need a paycheck. But in India, your savings itself can sort of look after a lot of things. I agree. हाँ, मतलब I think I agree with you to some extent, but it also depends on the idea कि क्या करना चाह रहे हो. हाँ, अगर थोड़ा outsourcing type model है, then definitely I think it makes sense to start in India, or maybe have some sort of a sales dual model, right? जहाँ पे कि इंडिया में भी हो, यहाँ पे भी हो, जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर है, हाँ, that's what you are trying to do. बहुत लोगों का यही है, जितने लोगों मैं जानता हूँ. Yeah. And it's nothing bad in that, right? They are leveraging their connections in India, and they have formed those connections here also. तो उनको mix करके they are creating a business model. That makes a lot of sense. Right. Now, Ashish, let's try to understand one thing. You are right now living in New York. You are someone who is very sort of going very deep into one domain. You are working in one of the biggest banks. What do you from a professional viewpoint? What gives you kick? Yeah, that's a great question actually. बहुत लोग अपने आप से नहीं पूछते ये सवाल, मुझे लगता है, क्योंकि they get into a group. मतलब उनको लगता है कि एक basic life चल रही है, सब कुछ तो है. वही पूछ रहा हूँ. Let me just. सही है और क्या चाहिए? हाँ. So a lot of people do that. मतलब with me. वो पर्सनली नहीं बोल रहा, मैं समझ गया वो आप प्रोफेशनली बता रहा हूँ. So professionally, right, I need to feel very excited when I wake up, right? मुझे पता होना चाहिए कि आज मैं कोई वैल्यू ड्राइव कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए. It is a function. Sometimes it's a function of the company, but most of the time it's a function of the role you're in. One of the reasons why I really got excited about this role at Capital One was because we are starting from scratch. So daily एक नया challenge है. It's like you're running your own business with someone else's money, right? So risk उनका है, but you are trying your new ideas, and based on your experience and expertise, most likely those ideas would flourish. तो वो जो एक सेटअप है ना, जहाँ पे तुम अपने खुद के आइडियाज ट्राई कर सकते हो और एक वैल्यू ड्राइव कर रहे हो बिजनेस के लिए, राइट? एंड देयर इज अ KPI एसोसिएटेड विद इट व्हिच यू कीप ऑन सीइंग, यू कीप सीइंग इंक्रीजिंग ओवर टाइम, राइट? कि मैंने ये किया तो मुझे ये वैल्यू मिली है. That's a validation which you have. The moment you get that validation, there's a dopamine high, right? That is a kick. At least for me, that works really well, right? And for that reason, I always tell my team also, right? You need to think like a business owner.
जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंपनी में या टीम्स में, द मोमेंट यू ब्रिंग इन दैट माइंडसेट, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे. जैसे कई बार ईगो इश्यूज होते हैं, राइट, कि मुझे इस टीम से बात नहीं करनी है, या इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, या कंप्लायंस इज गिविंग मी हार्ड टाइम एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ यू वेयर अ बिजनेस ओनर हैट, राइट, कि मैं अपने को काम करना है, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, फॉर एग्जांपल ये हो, राइट, कि मुझे अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, मैं तो ईगो में नहीं जा रहा हूँ भाई, हाँ मुझे रेवेन्यू चाहिए, राइट, आई डोंट केयर अबाउट. बट I would say majority population in corporate, right, they don't think like business owners, right? They think of it like a 9 to 5 job, कि मैंने जॉब कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया. वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब दैट इज नॉट एक्साइटिंग है ना. वो तो यार सब भी करते हैं जी. तो मतलब मैं एक डेली रेगुलर ऑफिस जाता हूँ, कॉफी लेता हूँ, अंदर चले जाता हूँ, 5 बजे वापस घर जाता हूँ. दैट्स नॉट एक्साइटिंग इनफ फॉर मी. तो मैं आई ऑलवेज लुक फॉर दैट किक इन अ जॉब. Could be one of the reasons ki that transition which I had from Amex to AWS to Capital One could be actually because of that. Because I had spent enough time. I love Amex because it's an amazing company. लेकिन अब 11 साल हो गए हैं. अब starting में बहुत kick थी, role change हो रहे थे. Eventually you do not get that kick and you want to try something new. So that was the reason I joined AWS. अब AWS के अंदर आप घुसे, right? And you were at a very big position there. Amazon के लोग इंटरव्यूज के बारे में बहुत बातें करते हैं कि Amazon की इंटरव्यू टेकिंग, दे हैव सम यूनिक वेज ऑफ जजिंग अ पर्सन. सो कैन यू टेल अस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि कैसे वो जज करते हैं एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड जनरली? या Amazon एज अ कंपनी इट्स वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. अच्छा, एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव, मतलब देयर इज सम सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वड, उसको भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया. आई विल गिव एन एग्जांपल. इट्स अ कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, राइट. कम्युनिकेशन इज अ सब्जेक्टिव स्किल सेट, कि किसी का अलग अलग भी हो सकता है. ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आपने बोला कि नंबर है, ऊपर है या नीचे है, राइट. इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. बट कम्युनिकेशन में भी दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू सम क्वांटिफाइड मेट्रिक. सो एंड इफ आई टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस, दे हैव देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स, राइट. कुछ 16 आई बिलीव लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं. They live by those principles every day. Everyone in the company. दो चार प्रिंसिपल बताओ. जैसे राइट अ लॉट. हाँ, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट, कि यू नीड टू, व्हेन यू मेक अ डिसीजन, राइट, इट हैज टू बी थॉट थ्रू, एंड अ गुड डिसीजन मेकर हैज टू बी राइट अ लॉट, नॉट ऑलवेज, अ लॉट, राइट. सो दैट्स वन. कस्टमर सेंट्रिसिटी अराउंड दैट काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कस्टमर फर्स्ट है ऑलवेज. कस्टमर ऑब्सेशन, आई थिंक दैट्स व्हाट. कस्टमर ऑब्सेशन, एक्चुअली दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट. So that's pretty, and they live by that. You look at you saw that absolutely at every level of the company. For example, a lot of people talk about different competencies within a company, right? In corporate setup, they do not always follow those competencies, right? It's kind of force fit, right? But in Amazon, everything, right from the first day, कोई भी evaluation हो रहा है, तो बताओ कौन सा leadership principle meet किया है. Wow. या अगर तुम लैक करते हो, ग्रोथ एरिया है, राइट, तो कौन से पे लैक करते हो, यू हैव टू लिंक इट टू दैट पर्टिकुलर लीडरशिप प्रिंसिपल्स, एंड दे आर प्रीटी एग्जॉस्टिव, आई थिंक. मुझे आप बताओ, आप Amazon में आपने 1.5 साल काम किया, एकदम अंदर बैठे थे, टॉप पोजीशंस पे थे. इफ आई हैड टू आस्क यू, गिव मी 3 रीजंस व्हाई Amazon इज व्हाट इट इज टुडे, व्हाई इज इट सो सक्सेसफुल, व्हाट वुड दोस 3 रीजंस अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज़ यू वर फ्रॉम द इनसाइड? या अब पहला तो वही है, कस्टमर सेंट्रिसिटी, राइट. दे आर मैड अबाउट देयर कस्टमर्स. मतलब you I don't know how much you have seen that experience here or in India. अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, या लुक एट द सर्विसिंग, राइट, अमेजिंग सर्विस. you try to reach out to someone for let's say returning a package or a defect, आपको कितना 2 मिनट में रिस्पॉन्स मिल जाता है. It's very different for other companies. That's the first thing. And they do not ask any further question, right? So they keep that at the core of their function. That's the first thing. Second, I would say they're brutally honest. Brutally honest? Yeah, about everything. Objective नाम है? Very objective, हाँ, brutally honest. कि मान लो कि if they have to give you feedback, then they will tell you on your face कि this is what it is, without beating around the bush. कि maybe you can improve XYZ dimension without really calling it out directly, right? So that's two. Brutally honest. Third, I would say
I think there's a lot of flexibility when it comes to whether you want to move to different functions within the company. Right, so you can spend 2 years in a particular business, and there are multiple businesses, right? There was Alexa, retail, AWS. It's very easy to move around, and typically people do move around after 2.5 years, right? So you are bringing in a fresh mindset, which does not make it too bureaucratic. क्योंकि सारे 2-2.5 साल बाद नए लोग आ जाते हैं. अब आपने एक कल्चर नहीं बनाया हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से चलोगे. सबको पता है ये 16 लीडरशिप प्रिंसिपल फॉलो करने हैं अक्रॉस द कंपनी. यू gathered a new fresh mindset from a different function. You are applying that in a new function. So innovation होती है उस process में. So pretty innovative company from that angle. Right? So yeah, these would be 3. There are many actually. Yeah. Wow. I think Amazon की एक चीज मुझे personally जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है is their ability to like unlearn. I have met so many Amazon leaders. कभी भी उनसे बात करो ना, उनमें ये नहीं लगता हमें आता है. मैंने आज तक कभी कोई Amazon के लीडर से बात करते हुए ये नहीं सुना वो मुझे बोले कि मुझे आता है. वो सोचते ही नहीं है. There are no levels. They don't think like that. Yeah, there are no levels. ऐसा नहीं होगा कि आप एनालिस्ट हो तो आप किसी डायरेक्टर या वीपी को बोल नहीं सकते हो. बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन इजीली, अगर आप गलत भी हो तब भी आप बोल सकते हो, एंड द पर्सन विल से, वो भी बोल सकता है, राइट? क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट. I know someone, I won't name them. They have basically worked with Jeff Bezos in Amazon, and they were telling me they used to argue with him, like properly argue. Yeah. Normally you are sitting with the most powerful man in the world. थोड़ा सा आदमी ना उसको खुश करने के लिए बोले हाँ वो चाहता है आप आर्ग्यू करो, नहीं करोगे तो वो निकाल दे. नहीं, वो दे अप्रिशिएट दैट. वो ऑब्जेक्टिविटी वहीं से आती है. राइट. कि आपको पता है आपने ठीक बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डोंट केयर अबाउट द लेवल्स. और थोड़ा फ्लैटिश भी है स्ट्रक्चर इफ यू थिंक अबाउट इट. तो तीन चार लेयर्स ही हैं, देन यू रीच द टॉप. नाउ आपने 3 साल इंडिया में काम किया. 3 साल. हाँ, 3 साल इंडिया में आपने काम किया, करीब 10-11 साल आपको यहाँ पे हो गए. इंडिया के वर्किंग कल्चर में और यहाँ के वर्किंग कल्चर में क्या डिफरेंस दिखा आपको? यार काफी डिफरेंस है आई थिंक वर्किंग कल्चर में. देयर आर 2 मेजर थिंग्स, राइट? फर्स्ट वन, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म ओवरऑल यहाँ पे बेटर है ओवरऑल. या इंडियन फोक्स आर प्रीटी टैलेंटेड बट एक्सट्रीमिज्म. हाँ, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रोफेशनल है, कुछ लोग दोनों ही नहीं है इंडिया में. हाँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी है. मतलब टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर जेनेरिक जो कॉर्पोरेट में पहुंच गए हैं, जो डिसेंट लेवल पे है, राइट? मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ. उसके बाद तो मतलब रेंज बहुत सारी है. मतलब वो नॉर्मल कर्व में बहुत सारे लोग फिट हो सकते हैं. बट मेजर डिफरेंस मुझे प्रोफेशनलिज्म में लगता है. आई थिंक यहाँ काफी लोग प्रोफेशनल हैं कि किसी ने बोला कि मुझे ये डिलीवर करना है, देन दे विल डिलीवर. तो उनको पता है दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. इंडिया में थोड़ा वो स्ट्रीट स्मार्टनेस के चक्कर में ऐसा होता है कि लेट मी फाइंड अ वे आउट हियर एंड देयर. So that's one. But that's the, I mean, I don't want to call it too negative also because they are pretty, the market right now is pretty talented in India. जो pool of employees है अभी, based on my experience so far, जितने लोगों से मैं डील करता था, they were extremely talented, right? मुझे लगता है कि उनको 1-2 अगर soft skills change हो जाए उनकी, for example, speaking with authority is one thing which is lacking. Yeah. Right? If you एक मतलब एटलीस्ट हमारे टाइप के बैकग्राउंड के लोगों में एक टिपिकल चीज होती है कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज के लिए, राइट? सो जब तक 100% श्योर नहीं हो तो आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे बहुत अच्छे से, राइट? आपको यू वांट टू बी राइट ऑलवेज. तो उस चक्कर में आप इतना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट ही नहीं करते होगे. यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि अगर आप गलत भी हो या अनश्योर हो या 50% देयर हो तो लोग बोलेंगे कि आई एम 50% there, but this is what I feel. They will express their opinion, and that helps. I think that helps in a back and forth, to and fro. So now, a lot of our future and US pathway candidates who are sort of coming from the future and US pathway, they're very excited about sort of starting their career in the US. Yeah. Now, if I had to ask you, why is the demand of people in analytics, AI, data science, data analytics, engineering, why is it increasing? It's not decreasing. Yeah. On one side, you see layoffs. Yeah. But if you look at absolute terms, it is increasing. Yeah. Why do you think it is increasing? Because that's what our candidates want to know.
Yeah, as I said, I think it will keep increasing for a considerable amount of time, I think, in future. The reason is pretty simple. If you pick any business, कितने business होंगे आसपास, forget about large companies, right? वहाँ तो थोड़ा बहुत फिर भी decision making data भी होती है. But think about small businesses, right? My friend, he runs a bakery shop. इधर ही है actually, upper west में, upper east में. आप कुछ लेके आते हो, लाइन ही आप. हाँ, अब तुम्हारी टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट थी. ले आएंगे नेक्स्ट टाइम. Definitely. तो देयर इज सो मच स्कोप, दे हैव सो मच डेटा. इफ यू लुक एट देयर ट्रांजैक्शंस, कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, कौन से जिप कोड से आ रहे हैं, क्या खरीदते हैं, किस टाइम पे खरीदते हैं, कब कॉल करते हैं, कब उबर से ऑर्डर आता है, राइट? देयर इज सो मच यू कैन डू विद इन दैट स्पेस इटसेल्फ, एंड इट्स अ स्मॉल बिजनेस. वहां पे कोई नहीं कर रहा उसको टैग उस मार्केट को, राइट? सो एंड थिंक अबाउट टोटल नंबर ऑफ बिजनेसेस इन द यूएस, राइट? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 33 मिलियन बिजनेसेस हैं यूएस में. मेरे हिसाब से, आई थिंक, एंड आई कुड बी रॉन्ग, मेरे हिसाब से पेनिट्रेशन ऑफ एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस बहुत एक्सट्रीमली लोअर सिंगल डिजिट्स. हाँ, तो वो डिमांड ऐसे है कि लोगों को रियलाइज होता है, अच्छा वो मैंने ये छोटी सी चीज ऐड करी है बेस्ड ऑन डेटा, एंड इट इज एडिंग सो मच वैल्यू टू माय बिजनेस, सो लेट मी कीप ऑन डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑन. दैट्स व्हाई दैट डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. और लार्ज कंपनीज में भी यही है. ऐसा नहीं, मतलब बारिंग अ फ्यू मे बी, ऐसा नहीं है कि बिगर कंपनीज में प्योरली डेटा साइंस या एनालिटिक्स के बेसिस पर डिसीजन होते हैं. वो कभी होते ही नहीं है. वो भी करना भी चाहते हैं, हाँ. मतलब कुछ एक्सटेंड तक करना चाहते हैं. वो एक तो हो नहीं सकते हैं बिकॉज जो मे बी जो लेगेसी जो बिजनेस चला रहा है, राइट, उसको फर्क नहीं पड़ता. ही और शी इज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, वो सुनेगा ही नहीं, राइट? तो अगर आपको वो बैकग्राउंड ही नहीं है तो हाउ डू यू नो कि इट्स इंपॉर्टेंट? तो दैट हैज टू चेंज टॉप डाउन, बट इट विल कीप इंक्रीजिंग, आई थिंक. तो जब आपके पास कोई आता है, when there's a resume that comes in front of you, or when you interview a candidate for any of those roles, analyst, engineer, scientist, whatever you call it, क्या देखते हो आप? What do you look for? यार एक बेसिक मार्क तो होता ही है. चलो ये होगा टेक्निकल, उसके अलावा. हाँ, सो बेसिक टेक्निकल मार्क तो देखते ही देखते हैं. सेकंड, इन द काइंड ऑफ जॉब आई एम इन, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, आई डू लुक फॉर कम्युनिकेशन आल्सो एंड स्टोरी टेलिंग. सो इट मे साउंड it's not very common for a data scientist to be also a good communicator, for example. But if you acquire that skill, you can go to places. You look at the smartest people in, you know, high level leadership meetings. They may not speak up because they lack communication, right? But अगर आपको numbers भी आते हैं, आपको बोलना भी आता है, आपको convince करना भी आता है, there is no other thing which you need on the table, right? ये लोग रियलाइज नहीं, ये बाद में रियलाइज करते हैं एक्चुअली, आफ्टर दे स्पेंड 6-7 years, राइट, इन द इंडस्ट्री. देन दे थिंक कि अच्छा यार सबको अच्छा कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है, और कोई बहुत अच्छा बोल के और अच्छा सा प्रेजेंट करके मीटिंग्स में उसकी ग्रोथ हो जा रही है, राइट? देन पीपल स्टार्ट एक्वायरिंग दैट स्किल, बट आई थिंक इट कम्स अ बिट लेट. तो मेरे हिसाब से यू गाइस आर डूइंग दैट ट्रेनिंग, राइट? इफ यू कैन convert a good data scientist into a good storyteller, that'll be a सब लोग यही कहते हैं, सब लोग यही. Yeah, that'll be an amazing combination, right? And it's not applicable everywhere. For example, if I talk about Amazon, may not be required because the roles are very well defined. तुम साइंस करते हो, तुम बिजनेस चलाते हो, तो दोनों को एक दूसरे को समझना है, but that's not how the world operates. Right? Most of the places business कोई और ही चला रहा होता है, और मोस्टली वो सेल्स और मार्केटिंग ही होता है. सो if they are the decision makers, right, then the data science person has to make them understand what he or she is talking about, and that is your storytelling communication skill. So now Ashish, थोड़ा broad macro बात करते हैं. अभी you have young children. आपको क्या लगता है जब अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे 20 साल बाद, जब भी करेंगे, वर्ल्ड कैसे बदल जाएगा? हाउ वुड द वर्ल्ड बी डिफरेंट when your children who are like very young right now, let's say in 15, 20, 25 years, whenever they start their professional journeys, how would it be different? यार मुझे लगता है कि जो टेक पार्ट है अभी, जो कि थोड़ा सा निश और उसको ऐसे माना जाता है कि कुछ लोग ही जानते हैं, वो मेरे ख्याल से काफी कॉमन हो जाएगा. मुझे लगता है वो स्कूलिंग का पार्ट बन जाएगा. हाँ, तो लोगों को बेसिक्स ऐसा लगेगा कि जैसे अभी हम एक लैंग्वेज सीखते हैं, राइट, ऐसे ही बेसिक टेक लोग सीख जाएंगे. पक्की बात. हाँ, तो वो चेंज हो जाएगा एक तो, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बाद. तो उसके
ओवर एंड बियॉन्ड आप क्या क्या ला रहे हो टेबल पे, दैट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट. और इफ आई टॉक, आई मीन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर. आई थिंक इंडिया में हो या यहाँ पे हो. अगर अब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में वो जो फोकस था साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो हिले में थोड़ा डिफरेंट. वो मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी हिल चुका है, राइट. अभी मैं देख रहा हूँ लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आर्ट में घुस रहे हैं. Our friend here, he's doing photography or filming, right? New York Film Academy. Yeah, despite being from IIT, right? Yeah. One of the top institutes. IIT Bombay. IIT Bombay. So, this is unheard of, right? Yeah. पहले कहाँ होता था ये? तो this will change completely. मुझे लग रहा है लोग अपना इंटरेस्ट फॉलो करेंगे और बहुत सारी नई फील्ड्स आएंगी फ्यूचर में. तो yeah. बट अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, व्हाट इज दैट वन एरिया, वन डोमेन, one, I don't know, like one focus area, one wave you see कि 20-25 साल तो बूम है. What is that? बूम है मतलब प्रॉपर. तो घुस जाओ उसमें. I think and if I have to bet on a particular industry, मैं तो analytics AI पे bet करूँगा 100%. मतलब I'm not being biased. No, fair enough. It's a pretty objective. No, I understand. I would say the same thing. Think about it, right? Data, यार अभी तो हमने डेटा खेलना शुरू नहीं है. हाँ, शुरू नहीं हुआ है. मतलब अभी तो हमने शुरुआत, हम इमेजेस को माइन करने लग गए हैं, टेक्स्ट को माइन करने लग गए हैं, वॉइस को हमने टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट. अभी ढंग से होता नहीं है, उसको माइन भी नहीं होता वो ढंग से. जब वो होने लग जाएगा तो क्या बनेगा. और पूरे टाइम लोग बात कर रहे होते हैं, राइट. दैट इज ऑल डेटा. सो एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इनटू डेटा. सो उसको एनालाइज करने के लिए कोई चाहिए, उसको देन यूज केस में डालने के लिए कोई चाहिए. So, मेरे हिसाब से तो 20-25 साल इसी में है, इसी फील्ड में. I like it. नाउ थोड़ा बताइए फॉर फन व्हाट यू डू. इतनी बढ़िया शहर में रहते हैं आप, काम वाम के अलावा तो बच्चे भी हो, बट जनरली यार आई हैव मतलब वो फेजेस में था. मतलब जब हम यहाँ पे आए थे तो बहुत. आप बताइए जब थोड़े यंग आए थे शुरू में, बच्चे नहीं थे, तो क्या करते थे आप फन? पहले तो एंजॉय करते थे न्यूयॉर्क सिटी. कि न्यूयॉर्क में है, आई ट्रूली फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. Actually, the best city in the world. Because I've been to a number of cities. So Europe भी काफी घुमा हमने. तो भी Tomorrowland में थी तो. हाँ, I was in Tomorrowland also with my college friends. Wow. It was a reunion. सही है, बड़ा सही है. आपकी वाइफ ने जाने दिया आपको? Yo, she's amazing. I think she'll like it and she'll listen to this. Yeah. हाँ, तो she's amazing. उसको ये पता है कि मैं अगर ये करूँगा तो थोड़ा और प्रोडक्टिव हो गया और घर पे ज्यादा हेल्प करूँगा. I like it. या तो हाँ, तो पहले 3-4 साल तो हम काफी पार्टी वार्टी करते थे. यहाँ पे बार्स काफी एक्सप्लोर करे हमने. नाइस. एंड देयर आर सो, यू वुड हैव सीन इट बाय नाउ, राइट. जितने यहाँ पे ईटिंग प्लेसेस और अलग ही लेवल के. हाँ, मतलब यू कैन गो टू अ न्यू बार एवरी डे फॉर 3 एवरी डे यू शुड नॉट ड्रिंक, बट हाँ, बार और ईटिंग प्लेस. तो पहले 3-4 साल तो वही था यार. मंडे टू फ्राइडे काम होता था एंड देन फ्राइडे सैटरडे वुड गो आउट. कभी वीकेंड पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी ऑफिस में? नहीं, मतलब इंडिया में कोई नहीं बोल पाएगा ये बात. इंडिया में कोई नहीं बोल पाएगा. यहाँ पे वो कल्चर नहीं है. मतलब अगर होता है एक आध साल में थोड़ा टॉक्सिक कल्चर माना जाता है, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज जैसे हेज फंड में लोग काम कर रहे हैं. पर दे गेट वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स आल्सो. हाँ, सम ऑफ देम. और वहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाला सिनेरियो था, राइट. तो अगर आपको टीम चलानी है और थोड़ा लीडरशिप में जाना है तो यू कैन नॉट हैव अ टॉक्सिक कल्चर इन द टीम. परफेक्ट. सो नाउ आशीष, वन फाइनल क्वेश्चन. अगर हम आपकी जर्नी को देखें तो आप दो चीजें बताइए. एज अ यंग पर्सन who's 24-25 thinking of building their career in the US or in India, one thing you think they should learn from your journey that they should definitely do, and one thing they should not do. It's a good question. I would say one thing which they can learn from, मुझे लगता है कि जो the importance of investing in yourself, right, and not just from let's say a professional learning point of view, but the fact that your body governs your mind. तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट. तो वो मुझे लगता है बहुत लोग भूल जाते हैं इन दिस प्रोसेस. मैंने स्पेशली देखा है कॉलेज के बाद लोग जॉब कर रहे हैं, फिर मोटे हो गए हैं, कुछ और बहुत जरूरी. तो आई थिंक that I learned really early in my career कि मुझे अगर इफेक्टिव रहना है, राइट, ऑफिस में, तो मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए. और मुझे वो या तो आप जिम करो या आप टेनिस खेलो या जो भी करो. हाँ, तो so that I learned pretty early in my career and I've been following it all along.
even now I go to gym almost 3 days a week, Nice. and the rest of the days I go play tennis. Nice. Right. So there's a routine which I maintain. So that's one मेरे ख्याल से I think I'll take you थोड़ी long journey होगी. अगर आप अपनी health पे compromise करके कुछ करोगे तो short term तक ही कर पाओगे and then you'll fail later. So that's one मेरे हिसाब से. Second, I think मुझे ऐसा लगता है कि मैंने try ज़्यादा नहीं किया starting में. मुझे लगता है कि I was in that same zone कि सही चल रहा है कि अच्छा कर रहे हो, पैसे आ गए हैं, जॉब चल रही है. फिर मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में कि क्या करना चाहिए. इंटरेस्टिंग. थोड़ा लेट सोचा, अभी भी सोच रहा हूँ. बट क्या जरूरत है आपको नहीं तो रिलैक्स करो आप. नहीं है, मतलब वो एज आई सेड कि वो किक चाहिए ना. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट समथिंग एल्स कि तो आप वैल्यू का ड्राइव कर रहे हो. राइट. तो हाँ, तो वो मेरे हिसाब से अगर आप सोच सकते हो पहले, थोड़ा सा फोर्स ही कर सकते हो कि आपको क्या करना है. एज आई सेड मैं 2 साल का अपना ओरिजिन लेके चलता था हमेशा. बट वो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना लंबा सोच लो कि 20 साल के हो और 35 साल में क्या करना है ये सोच लो. बट आई थिंक some clarity on that front will definitely help. Perfect. I think this was really helpful, Ashish. Yeah. Thank you so much. I had a very good time. Oh, thank you for inviting me. This was amazing. Thank you. All right. Perfect.